Hello everyone and welcome back to the channel. I am back with part 2 for your income from salaries as I have promised. So this lecture is going to cover all your retirement benefits which are covered under your salary. And for those who have not yet watched the lecture number 5 for income tax, please do watch it before watching this lecture. So let's start with today's lecture. As you can see on the slide, it says that during any service, an employee gets salary, allowances, perquisites, and many more benefits by his employer. While on retirement, he gets some other benefits which are called profit in lieu of salary, or you can say profit in addition to salary. So on retirement, some of the payments which are received are as follows. जो भी payments उसको retirement पे मिलती हैं उनमें से कुछ हम discuss करने वाले हैं which are as follows: gratuity, pension, encashment of earned leaves and provident fund. We will be discussing them individually. Basically, we are going to see that how much amount of these benefits we are liable to pay as taxes and how much amount is exempted. So let's first start with gratuity. As you can see, generally when an employee retires or he expires, a lump sum amount is given to him or in case of his death to his successor by his employer, which is called gratuity. It is a retirement benefit. सो ग्रेचुटी बेसिकली एक रिटायरमेंटल बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को मिलता है ईदर ऑन हिज रिटायरमेंट और ऑन हिज डेथ टू द सक्सेसर. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी द प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुटी, दैट what amount is exempted and what amount is liable to tax. So as you can see on the slide, we have the rules of gratuity here. So first of all, we will see if the employee is a government employee or he is a non-government employee. So in case he is a government employee, the gratuity will be fully exempted. Basically उसे कोई टैक्स नहीं पे करना उस रिटायरमेंटल बेनिफिट पे अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. बट अगर वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम क्या देखेंगे, क्या वो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड है या फिर नहीं है. तो सेकंड बाइफिकेशन हमारा इस बेसिस पर होगा दैट इफ़ ही इज़ कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड. सो इफ़ ही इज़ कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972, वी हैव द फॉलोइंग रूल्स दैट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड. सो हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके रूल्स गिवन है. ये 3 अमाउंट्स हमें निकालनी है. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इनमें से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी दैट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर हिम. So first of all, we will see the last month's salary that is given to him into 15 divided by 26 into number of completed years of service. जितने साल उसने सर्विस में दिए हैं वो उसके complete years हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. Then secondly, we will write out the maximum limit that is 20 lakh. ठीक है. Then thirdly, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, जितना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी उसे रिसीव हुआ है वो लिखेंगे. तो तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट. इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, दैट पीरियड मोर देन 6 months इज कंसिडर्ड 1 year. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एम्प्लॉई हैज़ बीन इन सर्विस फॉर 2 years 7 months, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 3 years. Now let us see the second case where he is not covered in the Gratuity Act 1972. So we have the following 3 amounts here. First of all, we will take the average of his 10 months salary into 1/2 of his service period. Basically half of his service period. Service period जितना भी टाइम उसने सर्विस में दिया है उसको हम कंसिडर करेंगे. सेकेंडली सेम यहाँ पर दोनों चीज़ें रहेंगी. मैक्सिमम लिमिट लिखेंगे 20 lakh एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड. यहाँ पर हमें ईयर्स के लिए क्या देखना है, इग्नोर इनकम्प्लीट ईयर. जैसे कि हमने कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में लिखा है कि अगर 6 months से ज़्यादा का टाइम पीरियड है तो उसे हम 1 साल में राउंड ऑफ कर देंगे. यहाँ पर क्या होगा, अगर इनकम्प्लीट ईयर है, कितने भी मंथ्स ले लीजिए आप, 9, 10, 11 कोई भी मंथ्स हैं और 1 साल पूरा नहीं है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ 2 years 9 months, we will take it as 2 years. All right, so these are the rules of gratuity. We will soon cover the numericals. In that you will learn how to apply these rules. All right, so now let us move to the second retirement benefit. We have pension. So it says that after retirement or after the death of an employee, a certain sum is paid in recognition of the services rendered during the employment, either every month और एज अ वन टाइम लम्प सम अमाउंट विच इज़ कॉल्ड पेंशन. ठीक है, ये भी एक रिटायरमेंटल बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है ईदर ऑन हिज रिटायरमेंट और आफ्टर हिज डेथ, एंड दिस सम इज़ पेड ईदर एज अ लम्प सम अमाउंट और फिक्स्ड टाइम पे भी दे सकते हैं, मंथली मिल रहा है, ईयरली मिल रहा है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक लमसम अमाउंट हम पे कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पेंशन हमारा 2 टाइप का होता है. फर्स्ट वी हैव कम्यूटेड पेंशन एंड सेकंड इज अनकम्यूटेड पेंशन. सो यहाँ पर हमने जो बोला ऊपर डेफिनेशन में कि हम
पेंशन को दो तरीके से दे सकते हैं। एक फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट भी हो सकती है कि हर मंथ दी जा रही है, या फिर एक लमसम अमाउंट भी हम तय करके दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। जो कम्यूटेड पेंशन होता है उसका मीनिंग होता है लमसम अमाउंट हमने पे कर दिया, कोई फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम नहीं था, कोई फिक्स्ड पेमेंट नहीं था, एक लमसम अमाउंट पे कर दिया गया है। अनकम्यूटेड में क्या है, पीरियोडिक पेमेंट होंगी, मंथली, ईयरली, ये सब चीज़ें होती हैं अनकम्यूटेड। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी द रूल्स for commuted and uncommuted pension. So if the employee is receiving uncommuted pension, or you can say periodic payment, monthly payment for pension, then it will be fully taxable. कोई भी अमाउंट उसका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसे पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है अगर उसे अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट अस कम टू द कम्यूटेड पेंशन। इसमें हमारे दो पार्ट्स हैं। फर्स्टली, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, या डिफेंस में है, किसी भी तरीके का एम्प्लॉय है, तो उसको क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, उसे कोई टैक्स पे नहीं करना जो से पेंशन रिसीव हो रही है। ऑल राइट, कम्यूटेड पेंशन। नाउ इफ़ ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉयज़ में आता है, तो हमारे पास दो केसेस हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो वो एम्प्लॉय है क्या उसे ऑलरेडी ग्रेच्युटी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये हमारे दो बाइफिकेशंस होंगे। सो इफ़ द एम्प्लॉय इज़ रिसीविंग ग्रेच्युटी अलॉन्ग विद द पेंशन, देन वी विल कैलकुलेट द एग्जेम्पशन अमाउंट। हम एग्जेम्पशन अमाउंट कैसे निकालेंगे उसकी, 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड divided by the commutation percentage, that into 100 it will be the exempted amount. So basically होता क्या है, सो ये जो हमारा कम्यूटेशन और अनकम्यूटेड पेंशन का क्राइटेरिया होता है, इसमें होता क्या है, लेट अस अज्यूम कि जो पेंशन का आपका टोटल अमाउंट बना है जो आपको मिलना है वो है 1 लाख रुपीज़। सो यू कैन से दैट जो हमारा 60% होगा इसका, वो आप मुझे कम्यूटेड पेंशन की तरह दे दीजिए। मतलब कि 60% कितना हो गया, 60,000, ठीक है। और जो 40% बचा उसका, वो आप मुझे पीरियोडिक पेमेंट के फॉर्म में, यानी कि अनकम्यूटेड पेंशन के फॉर्म में मिलता रहेगा पर मंथ, ठीक है। तो ये होता है क्राइटेरिया। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि अगर कम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय एंड ही इज़ रिसीविंग ग्रेच्युटी अलॉन्ग विद द पेंशन, उसे ग्रेच्युटी भी मिल रहा है, तो हम एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना मानेंगे, मतलब कितने पे उसको टैक्स नहीं देना है, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड पेंशन रिसीव, जो उसे कम्यूटेड पेंशन मिली है, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 60,000, डिवाइड करेंगे उसे कम्यूटेशन परसेंटेज कितना है 60% इंटू 100। इससे हमारी क्या आएगी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब उसे ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेंशन मिल रही है, इन दैट केस वी विल टेक हाफ ऑफ कम्यूटेशन पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय योर कम्यूटेशन परसेंटेज इनटू 100, इट विल गिव अस द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ऑल राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। सो डू लर्न दिस फॉर्मूलाज एंड डू रिमेंबर इट। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वी हैव encashment of earned leave. So we know that in any corporate job or in any employment you get some paid leaves. ऑल राइट, आपको कुछ पेड लीव्स मिलती हैं जिसके आपका सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं होता, वो आपकी पेड लीव्स होती हैं। तो इन केस अगर कोई एम्प्लॉय है जो अपनी पेड लीव्स अवेल नहीं कर रहा है, ठीक है, ही इज़ नॉट टेकिंग द लीव्स विच इज़ गिवन टू हिम एज पेड लीव्स, तो इसमें क्या होता है, ये क्राइटेरिया होता है कि उसके कॉम्पनसेशन में उसको कुछ कैश दिया जाता है, उसकी पेमेंट की जाती है, तो इन ऑर्डर टू एनकरेज हिम और यू कैन से टू मोटिवेट हिम। तो यहाँ पर इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का कॉन्सेप्ट यही कहता है हमारा कि उसे जो लीव्स मिली हुई थी एज पेड लीव्स, उसने वो अवेल नहीं करी, उसकी जगह उसने क्या ले लिया, कॉम्पनसेशन ले लिया, पेमेंट ले ली, तो इसको हम बोलते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव्स। अब इसमें जो उसे पेमेंट मिलती है उसमें हमें देखना है कितना एग्जेम्पशन अमाउंट होगा हमारा और कितने पे उसका टैक्स एप्लीकेबल होगा। सो लेट अस सी, एन एम्प्लॉई हैज़ अ राइट टू टेक लीव्स ड्यूरिंग हिज सर्विस पीरियड. If he doesn't take the approved leaves and they get expired, the employer pays salary for such earned leaves. क्योंकि वो लीव्स उसने कमाई हैं तो उसके लिए उसे कॉम्पनसेशन दिया जाता है। Now, if it is received during the service, it is fully taxable. यानी कि अगर ये जो आपका इनकैशमेंट है अर्न लीव्स का, अगर आप ये कब लेते हो, सर्विस के दौरान लेते हो, मतलब रिटायरमेंट से पहले लेना चाह रहे हो सर्विस करते हुए, तो ये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मेंशन्ड है आपका लीव क्रेडिट क्या होता है, या आप आगे जब हम प्रोविजंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो लीव क्रेडिट का एक फॉर्मूला होता है। लीव क्रेडिट हम कैसे निकालते हैं, लीव्स ड्यू माइनस लीव्स अवेल्ड, यानी कि कितनी लीव्स थी आपके पास टोटल, मानिए आपके पास अलाउड है आपको एक साल में 12 लीव्स लेना, और आपने कितनी ले लिए, 8 लीव्स ले ली हैं, तो 12 - 8 इट विल बी 4 लीव्स, that will be your leave credit. All right, now moving on to the provisions or you can say rules. So as you can see on the slide, we have this flow chart here. It divides the leave encashment further into two categories, that if it is received during the service, it will be taxable. We have already studied that in the previous slide.
देन इफ़ इट इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तब हमारे दो बाइफिकेशंस क्या होंगे, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अदर एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसे कोई भी टैक्स नहीं पे करना लीव एनकैशमेंट का जो वो उसे बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो अदर एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आता है तो हमें ये 4 अमाउंट्स देखने हैं, इनमें से जो भी लीस्ट होगा उतना अमाउंट उसका टैक्स फ्री हो जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट हेयर सेज दैट द 30 days सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, बेसिकली जो भी उसकी एवरेज मंथली सैलरी है टू द एक्सटेंट ऑफ लीव क्रेडिट, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी उसकी मंथली सैलरी है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी उसकी अवेलेबल लीव्स रह गई हैं लीव क्रेडिट के हिसाब से, यानी कि जो उसकी ड्यू थी उसमें से आप माइनस कर दोगे जो वो ले चुका है लीव्स, तो जो अब ड्यू रह गई हैं उसको आप मल्टीप्लाई करोगे उसकी एवरेज मंथली सैलरी से। 30 days सैलरी मीन्स मंथली सैलरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट 10 months एवरेज सैलरी, तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे, उसकी 10 महीने की एवरेज सैलरी। थर्ड पॉइंट जो उसे एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है वो लिखोगे। लास्ट वी हैव द मैक्सिमम अमाउंट लीव एनकैशमेंट का जो भी एग्जेम्प्टेड सरकार की तरफ से है स्पेसिफाइड है, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। तो अमाउंट गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई कर रखा है वो है 3 लाख। तो अब ये चारों अमाउंट्स लिखोगे। फर्स्ट में क्या करना है, मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई करना है लीव क्रेडिट को जो भी उसकी लीव्स रह गई हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट 10 months की एवरेज सैलरी, देन अमाउंट रिसीव्ड एंड देन द मैक्सिमम अमाउंट। इसमें से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड वी हैव प्रोविडेंट फंड। सो बेसिकली आप इसे पीएफ के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा ये चीज़ कि हम बोलते हैं कि इतना अमाउंट उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है एज पीएफ, प्रोविडेंट फंड के तौर पर इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है उसकी सैलरी में से। सो दैट इज़ पीएफ। यहाँ पर देखते हैं, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड टू एनकरेज स्मॉल सेविंग्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स अवेलेबल, ठीक है। प्रोविडेंट फंड बेसिकली होता किस लिए, कुछ एक अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय को, ठीक है, एंड टू एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग्स। सो अंडर दिस स्कीम a fixed amount is deducted from employee's salary as his contribution towards the fund and some amount may be also contributed by the employer। तो बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकालता है प्रोविडेंट फंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, और कुछ हिस्सा हो सकता है आपका एम्प्लॉयर भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करे। अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोविडेंट फंड है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं इसके मेजरली, देन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो प्रोविडेंट फंड्स के टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट वी हैव statutory provident fund or you can say general provident fund. So these are the funds that are set up under the provisions of Provident Funds Act 1925। तो ये जो statutory provident fund है ये किस एक्ट के अंडर होता है, Provident Funds Act 1925। They are maintained by the government or a semi-government employee or you can say educational institutions etc. The amount received by the employee from such funds are exempt under section 10 सबसेक्शन 11। बेसिकली ये जो फंड्स होते हैं ये कौन से एम्प्लॉयज़ मेंटेन करते हैं, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, ठीक है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और जो अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है और जो एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है वो कैसा होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसको हम आगे एग्जेम्पशन वगैरह सब डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड वी हैव इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो दिस इज अ फंड विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड सर्टिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो भी इनकम टैक्स कमिश्नर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है इस फंड को, ठीक है, सर्टिफाई करता है। एंड दीज फंड्स आर मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वेयर इन बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स, दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और ये मेंटेन किया जाता है शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड वी हैव अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो सच फंड्स आर नीदर स्टैट्यूटरी नॉर रिकॉग्नाइज्ड, ना ही वो स्टैट्यूटरी होते हैं ना ही रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, ठीक है। दे आर मेंटेन्ड बाय स्मॉल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसे मेंटेन करते हैं। लास्टली वी हैव पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसे आप पीपीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनी पर्सन वेदर अ सैलरीड पर्सन और अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, हो सकता है सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, तो दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस फंड। बेसिकली यहाँ क्या कहने का मतलब है कि सैलरीड एम्प्लॉय भी हो सकता है या फिर बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस फंड में, ठीक है। सो दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 1968 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो पीपीएफ की फैसिलिटी थी कब से स्टार्ट हुई है, 1 जुलाई 1968। नाउ अब हमने पढ़ लिया कि ये 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि कुछ कुछ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसमें हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट दोनों की तरफ से जो कंट्रीब्यूट है किस में हमें एग्जेम्पशन मिलेगी, क्या अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। सो वी विल स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड वी हैव ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड।
So as you can see on the slide, first of all we have these 4 types of provident fund which you have already discussed on the previous slide. Statutory provident fund, recognized provident fund, unrecognized and पब्लिक प्रोविडेंट फंड. तो इसमें हमने 4 पर्टिकुलर्स रखे हैं अपने, जो मेनली रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय ने खुद से कॉन्ट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स इट्स प्रोविडेंट फंड. देन वी हैव एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उसके बॉस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है. देन अब जब आपने पीएफ में कुछ पैसा डाला है, हर महीने अपनी सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा. ठीक है. फिर लास्टली जो आपने पूरा हर मंथ पीएफ में पैसा डाला है, वो जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो आपको जो पेमेंट लास्ट में मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसमें कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, वो सब हमें देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन में कैसे रहता है हमारा इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड. तो एज यू कैन सी फॉर एसपीएफ, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इट इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन. जो भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपने प्रोविडेंट फंड के लिए, वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C. ठीक है. तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट. देन आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी सिमिलर है. देन पीपीएफ में भी आपका सेम है. चेंज कहाँ पर है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, विच इज़ नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन. यानी कि जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने पीएफ में, अगर वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती, कोई डिडक्शन नहीं मिलती. इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल. ऑल राइट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपके बॉस ने आपके पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया है. तो इन केस ऑफ एसपीएफ इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट. जो भी आपका बॉस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है. देन इन केस ऑफ URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इट इज़ नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उस टाइम पर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है. देन लास्टली पीपीएफ में तो सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है, बॉस का इसमें कंट्रीब्यूट करने का कोई सीन नहीं होता. तो यहाँ पर हमने लिखा है नॉट एप्लीकेबल एज देयर इज ओनली असेसीज ऑन कंट्रीब्यूशन. यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है पीपीएफ में, एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है. देन कमिंग टुवर्ड्स आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सेकेंड कॉलम, इसमें हमने क्या लिखा है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल. यानी कि एम्प्लॉयर अगर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपकी जो सैलरी का 12% है उससे ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पीएफ में, तो वो उस पर टैक्स लगेगा. अगर जो उसने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो आपकी सैलरी का 12% तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल है. ठीक है. देन कमिंग टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड. अब इंटरेस्ट के लिए कैसा रहता है, यहाँ पर जो आपका एसपीएफ है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं है. सिमिलरली पीपीएफ में भी कोई टैक्स नहीं है. एंड यू कैन सी URPF इज़ नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट. जब आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है. देन आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आप देखिए जो भी आपका मिनिमम मेजर रूल्स है ना वो सारे आरपीएफ में ही है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमने देखा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में था कि इफ़ इट इज़ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी देन इट इज़ टैक्सेबल. तो हमारा ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए अमाउंट है 9.5%. अगर जो इंटरेस्ट है वो 9.5% से ज़्यादा है आपकी सैलरी से तो वो टैक्सेबल होगा. अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज़ टैक्सेबल एंड इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी. तो हम इसे इंक्लूड करेंगे सैलरी में एज टैक्सेबल अमाउंट. ऑल राइट. नाउ द लास्ट पॉइंट वी हैव अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन. जब एम्प्लॉय टर्मिनेट कर रहा है अपनी जॉब से या फिर रिटायर हो रहा है तो उस पर जो सारा पैसा इकट्ठा हुआ है जब उसे मिल रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा. इन केस ऑफ एसपीएफ इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स पे नहीं करना. सिमिलरली आरपीएफ में भी कोई टैक्स पे नहीं करना. ऐसे ही पीपीएफ में भी कोई टैक्स पे नहीं करना. यहाँ पर हमें रूल्स किसके ध्यान रखने, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए. So as you can see on the slide, first of all we need to keep in mind that the employer's contribution and the received interest on it is liable to tax. बेसिकली जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है पीपीएफ में, ठीक है, जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है इसमें जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है टोटलिटी में वो टैक्सेबल होगा. ऑल राइट. देन सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था और उस पर जो इंटरेस्ट बनता है दैट इज़ टैक्सेबल एज अदर सोर्सेज. तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल किया जाता है. ठीक है. तो मेजरली ये जो रूल्स हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड के, इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका आरपीएफ का क्वेश्चन बनता है मेजरली. ठीक है. तो ये रूल्स आप एक बार गो थ्रू कर लें. ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूमेरिकल में. नाउ आई हैव ऑल्सो अटैच्ड अ फॉर्मेट of how can you solve a full-fledged question for income from salaries. As you can see on the slide, we have this format here. तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चाहे इनकम फ्रॉम सैलरीज का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने चीज़ें देखी थी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स,
एंड सेकेंडली हमने यहाँ पर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स देखे। तो इन सबको अक्यूमुलेट कर कर जो हमारा पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर होता है दैट इज़ इट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी, ठीक है, एन्युटी, बोनस, जो भी आपका सैलरी का पार्ट होता है, कमीशन वगैरह, वो सब चीज़ें आती हैं फर्स्टली। देन वी विल ऐड ऑल द रिटायरमेंटल बेनिफिट्स, ग्रेचुटी, पेंशन एंड ऑल। देन परक्यूजिट्स ऐड होंगे सारे जो भी टैक्सेबल होंगे, पार्टली या फुल्ली टैक्सेबल। देन वी विल इंक्लूड द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। हमने अभी पढ़ा कि आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर वो 12% सैलरी से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा। देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%, वो भी हमने रीड किया है, ठीक है। आप मेजरली इसी का क्वेश्चन देखेंगे जो आपका एग्जाम्स में रिपीटेडली आता है, आरपीएफ का ही। तो ये फॉर्मेट आपको एक बार गो थ्रू करना है। देन वी विल हैव आवर ग्रॉस सैलरी। इन सब चीज़ों को ऐड करके जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, परक्यूजिट्स, अलाउंसेस, सब कुछ ऐड कर हमें मिल जाएगी ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हम इसमें से 3 डिडक्शंस करते हैं, दैट कम्स अंडर योर सेक्शन नंबर 16। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था अपने कि 3 डिडक्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। Now, in order to understand the standard deduction, you can have a look at the slide that a standard deduction is a flat amount deducted from the taxable salary income, allowing the taxpayers to reduce the taxable income without submitting any proof or disclosures. Basically ये deduction गवर्नमेंट ने आपको दे रखी है इस चीज़ के लिए, सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलती है। ये किस लिए मिलती है, टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इसमें आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको एज डिडक्शन मिलती है। किसको मिलती है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को। तो अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है कि जो आपका नया बजट रिलीज़ हुआ है 2024 का, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे इंक्रीज़ कर 75,000 कर दिया, जो कि अर्लियर क्या था 50,000। जनरली हमारा ये 50,000 वाला रूल चलता था, बट लेटेस्ट इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है टूवर्ड्स 75,000। बट as per your numericals, as per your exam point of view, you can just write 50,000 in case of standard deduction, because 50,000 भी अभी फॉलो हो रहा है as per your old regime। हमारी 2 रिजीम होती हैं इनकम टैक्स की, जब से न्यू टैक्स रिजीम आई है। तो आप किसी भी रिजीम के थ्रू अपना ITR फाइल कर सकते हो, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करें, चाहे न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करें, ठीक है। तो एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन जस्ट राइट 50,000 एज आई हैव जस्ट अटैच दिस स्लाइड जस्ट टू अपडेट यू रिगार्डिंग द न्यू रूल्स। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर डिडक्शंस लिखा है, आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखोगे उसके आगे जस्ट आपको 50,000 का अमाउंट लिखना है, ठीक है। ये 75,000 वाला रूल अभी अभी आया है, तो आपके लिए एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देन कम मूविंग फॉरवर्ड टू द एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेकेंड डिडक्शन यू हैव। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी हमने इनकम फ्रॉम सैलरीज पार्ट 1 में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, कितना डिडक्शन है, ठीक है। देन थर्ड यू हैव एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसकी फिगर आपको गिवन होगी, वो सब आपको सामने लिखना है बस, ठीक है। ये 3 डिडक्शंस आप जब माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी में, देन यू विल हैव योर नेट सैलरी, और यू कैन से इनकम फ्रॉम salaries. Alright, so that's all for today's lecture. Till now we have covered all the important concepts for your income from salaries, and in the next lecture we are going to do some of the important numericals from your exam point of view, and I'll be back soon with another lecture. Till then, please subscribe to the channel, like the videos, and do share your feedback in the comment section. Thank you so much.